If you found the content helpful, then kindly share this video with your friends. Also, don't forget to like and subscribe. Happy learning! Welcome students. Today we are going to discuss the second law of Faraday, but I will start from where I left. In yesterday's lecture, I told you that Z, electrochemical equivalent, it is equal to equivalent weight of a substance divided by 96500, and I said over there that I will be discussing that how we arrived at this conclusion. हमारे पास Z की वैल्यू का ये फार्मूला कहाँ से आया, that I left for today. So let us begin with this. हमने यही छोड़ा था कल, इसी से शुरू करते हैं. ये कहाँ से आया, इसको समझने के लिए let us take one example. Suppose we are electrolyzing a solution of aluminium ion. Aluminium carries 3 units of positive charge over it. So when this will be discharged at an electrode, it will take up 3 electrons. One ion of aluminium having 3 units of positive charge will require 3 electrons to get neutralized and form aluminium atom. If I have 1 mole of this, then we will require 3 moles of electron. 3 moles of electrons. How much weight of aluminium will be deposited? Equal to atomic weight in ग्राम. इसके बराबर हमारा वेट डिपॉजिट होगा. एल्युमिनियम का जो एटॉमिक वेट है उसके बराबर हमारा वेट डिपॉजिट होगा 3 moles of electrons. That is how much charge? 3 moles of electrons carries charge equal to 3 into charge on 1 electron. 1 mole of electron. Charge on 1 mole electron. Am I right? Now let us calculate charge on 1 mole of electrons. Charge on 1 mole of electron will be equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs multiplied by Avogadro number, that is 1.6021 into 10 की power 23. Now if we calculate this, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 96487 coulombs, which is approximately taken as equal to 964,500 coulomb, and this quantity of charge, because it is a charge on 1 mole of electron, so this is a fixed quantity, it is a constant, so it is called Faraday's constant, and this charge of electricity is called 1 Faraday. It is called 1 Faraday. Its symbol is capital F. We have taken this as equal to 96500 coulomb for our convenience, to make our calculations easier. Otherwise the value comes out to be this. So if I put this value over here, that is your 3 into 96500 coulombs of charge deposit how many grams of aluminium equal to atomic weight of aluminium in grams.
जैसा कि मैंने ये लिखा था, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट और द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज. So how much aluminum will be deposited by 1 coulomb? It will be equal to atomic weight divided by 3 into 96500. Now if you go to the definition of equivalent weight or the relations of equivalent weight, in 11th we have told that equivalent weight of an ion is equal to atomic weight of element divided by charge on ion. This we have already read in 11th. So what does this make? What is this? Atomic weight by 3. 3 is the charge carried by ion of aluminium. Atomic weight of aluminium divided by 3, it becomes equivalent weight of aluminium. So we can say that Z, which is the amount of or the mass of substance deposited by 1 coulomb, that will be equal to equivalent weight divided by 96500. This is what we have written yesterday. कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए यही रिलेशन लिखा था कि Z is equal to E by 96500, where E was the equivalent weight of that element. So this is how we arrive at this relation. So now let us move to the Faraday's second law. Faraday's second law. Before giving the definition of this law or the statement of this law, better is the statement of this law, I would like to go to this law through the law, that is the first law of Faraday. हमने क्या कहा था, that mass of a substance deposited, that is equal to Z into I into T. मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं. In one of the cells I am having copper sulfate solution, aqueous solution of copper sulfate, and in the second I am having a solution of, say, silver nitrate, aqueous solution of silver nitrate. I connect these two electrolytic cells in series. मैं इन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूं. You know how to connect two conductors in series. So I am connecting it in series. मैंने इनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में. Now, from your knowledge of physics, you know when two conductors are connected in series, the charge or the quantity of current flowing through the two conductors remain same. पैरेलल अगर लगाएं तो डिवाइड हो जाता है करंट, लेकिन आपका सीरीज के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता है. फिजिक्स में पढ़ाएंगे आप. इसका मतलब अगर मैं इन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट करूं तो मेरे दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रही है. मैं पहले वाली बी करके फैराडेज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ लगाऊं तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इट विल इक्वल जेड ऑफ कॉपर into I into T. I am supposing that quantity I of current is flowing for time t seconds. T seconds के लिए आपका करंट पास कर रहा है I एम्पेयर्स का.
मतलब करंट कितना है हमारा, इट इज इक्वल टू I एम्पियर्स एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज योर t seconds. So this will be your equation number 1. I am applying the first law to the beaker number 1 containing the solution of copper sulfate. Now apply Faraday's first law to the second beaker. Then weight of silver deposited, that will be equal to Z silver into I into T, because the two solutions are connected in the series. Just I have said that they will have the same quantity of charge flowing through that. This is your equation number 2. Now if we divide the two equations written over here, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, इट इज इक्वल टू जेड कॉपर डिवाइडेड बाय जेड सिल्वर. एम आई राइट? IT से IT कट जाएगा, तो जेड कॉपर बाय जेड सिल्वर. नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ जेड फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, it is equivalent weight of copper divided by 96500. In the bottom it will be equivalent weight of silver divided by 96500. That will go above. ये कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver. यही आपका मैथमेटिकल फॉर्म है second law of thermodynamics. W, that is the mass of the copper deposited divided by mass of silver deposited, is equal to equivalent mass of copper divided by equivalent weight of silver. This is the mathematical form of second law of Faraday. So how we can now state this second law of Faraday? अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं. मैंने आपको बता दिया कि इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ ही एक्सटेंड किया हुआ है. तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है, इट इज स्टेटेड एज द masses of two substances deposited, or you can say discharged, at respective electrodes is in the ratio of their equivalent masses, in ratio of their equivalent masses, provided same amount of charge is passed through them, passed through two solutions you can say. अगर हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में से सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास करेंगे, तो जो हमारा मासेस का रेशियो होगा ऑफ द टू सब्सटेंसेस डिपोजिटेड, दैट विल ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास. ठीक है, समझ में आ गई ये? या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, थोड़ा सा इसको अगर हम ब्रीफ करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं दैट द रेशियो ऑफ मासेस, सेकंड जो इसकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हो सकती है वो ये हो सकती है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू सब्सटेंसेस, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू सब्सटेंसेस deposited on passing same amount of charge
through their solution is in the ratio of equivalent masses of the two substances. Equivalent masses of two substances. कैसे मर्जी लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए. Both are the statements of Faraday's second law. There are certain numericals over these two laws, so you must try those numericals. एक चीज जो हम थोड़ा और यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि कल रह गई थी, while we were discussing about the criteria of product formulation, that was over voltage. That was over voltage. Over voltage क्या होता है? जैसे कल हमने जब NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, तो हमारे पास क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन थे, which were to be discharged at the anodes. और मैंने कहा था कि आपका क्लोरीन जो है वो डिस्चार्ज होगा, और मैंने वहां कहा था कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो. तो अगर आप डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे तो आपको वाटर का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है एनोड पे, मतलब ऑक्सीडाइज होने का, वो अगर आप देखेंगे क्लोरीन से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ने तो गलत बता दिया, उल्टा बता दिया, OH होना चाहिए था. एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम डिस्चार्ज पोटेंशियल इनके देखें तो नो डाउट द डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर वाटर इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ chloride ion. But what happens is the reaction of oxidation of water at anode is kinetically very slow. हमारी रिएक्शन क्या होती है? It is kinetically slow होती है. So you can't carry out that reaction in that cell with the same speed at which the cathodic reaction is going on. So to speed up that reaction equal to that going on the cathode, we need a slightly more potential to be applied in addition to the discharge potential, and that extra potential which is required to make it kinetically feasible. काइनेटिकली उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है और जो हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, उन दोनों का जब हम सम करेंगे, दैट विल एक्सीड द discharge potential of chloride. That is why your chloride will be discharged. तो over voltage क्या है? Over voltage is the potential difference over and above the discharge potential which is required to speed up the reaction kinetically to occur at a given electrode. That will be your over voltage. ये ध्यान रखना है, तो कभी कभी हमें over voltage की जरूरत पड़ती है अगर रिएक्शन kinetically slow हो. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोलिसिस, क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, Faraday's laws. Now we are coming to the third part of this chapter, that is the electrochemical cell, electrode potential. So let us begin with that. मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास दो तरह से रिडॉक्स रिएक्शन क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर टेंडेंसी टू अकर. हमने कहा था स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड ऑन द बेसिस हाउ द रिएक्शन इज कैरिड आउट. उस रिएक्शन को हमने कैसे किया, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. हमारी रिएक्शन दो तरह की बताई थी मैंने आपको. वन इज कॉल्ड direct redox reaction. One is called direct redox reaction and second one is called indirect redox reaction. Although you are familiar with these two terms, you have read something about the two reactions, how they are carried out in 11th itself.
in the chapter redox reaction, but we are repeating it over here क्योंकि हमें इसकी अब जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? अगर हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें और इसमें जिंक की रॉड डाल दें, जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन था, उसके हमने जिंक रॉड डाल दी उसके अंदर। वी लेफ्ट दिस सॉल्यूशन फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इसमें बीकर में। इसको अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे? अगर हम इस रोड को, जिंक रोड को वे करके डालें, वेट करके, इसको तोल के कि हाउ मच दिस रोड इज वेइंग, इसका वेट नोट कर लें। कुछ टाइम के बाद इस रोड को बाहर निकालें हम और इसको तोलें तो हम क्या देखेंगे? जिंक रोड इज लूजिंग द वेट, जिंक रोड इज लूजिंग वेट, जिंक रोड का वेट कम हो रहा है। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे? दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू, ये ब्लू होता है। द सेकेंड थिंग यू विल ऑब्जर्व इज इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, intensity of blue color is diminishing। आपके ब्लू कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। मतलब पहले कलर ज्यादा इंटेंस ब्लू था, ज्यादा ब्लू दिखाई दे रहा था आपको, धीरे धीरे वो आपका हल्का ब्लू होना शुरू हो गया। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। There is a brownish deposition on zinc rod as well as at bottom of beaker। आप क्या देखेंगे? तीसरी चीज कि इस बीकर के अंदर आपको यहां पे जहां जिंक रोड डली हुई थी उसके नीचे आपको हल्का हल्का कुछ ब्राउनिश ब्राउनिश सा गिरा हुआ दिखाई देगा। कुछ आपको जितनी ये रोड डिप थी, जिंक रोड डिप थी, उस रोड के ऊपर हल्का सा ब्राउनिश कलर आपको दिखाई देगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज ऑब्जर्वेशंस। चौथी चीज जो आप नोट करेंगे इसके अंदर, वो आप क्या नोट करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द बीकर है, solution of beaker is heated up, solution of beaker is heated up। आपका जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसका तापमान, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये बीकर आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये हुआ क्यों? Why it happened like that? उसका कारण ये है कि जब आपने जिंक सॉलिड रोड को डिप किया क्यूप्रिक आयन के सॉल्यूशंस में, तो हमारी कॉपर की रिडक्शन हुई और जिंक की ऑक्सीडेशन। जिंक गॉट ऑक्सीडाइज्ड, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, those electrons were taken up by the cupric ion and it get deposited as copper metal। अब क्योंकि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जिंक कलर का वेट लूज हो रहा है, ऑटोमेटिकली जब ये जिंक का जो है ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन बना के सॉल्यूशन में जा रही है तो जिंक रोड का वेट कम होगा ही होगा। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिमिनिश हो रही है। ब्लू कलर इज ड्यू टू cupric ion, hydrated cupric ions। So when the cupric ion concentration is decreasing in the solution, naturally your blue color of the solution will also diminish, वो भी हल्का पड़ेगा। ब्राउनिश डिपोजिशन, ब्राउनिश डिपोजिशन क्या है? ब्राउनिश इज द कलर ऑफ कॉपर मेटल। तो कुछ तो कॉपर आयन जो है वो इस जिंक रोड पे डिपॉजिट हो गए, कुछ जो है वो सॉल्यूशन में नीचे गिर गए, तो यू विल बी ऑब्जर्विंग ए ब्राउनिश डिपोजिशन। अब क्या हो रहा है इसमें? बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो किए जिंक रोड से कॉपर आयंस को।
मतलब अगर हमारे पास एक अरेंजमेंट होता, हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकते किसी एक्सटर्नल सर्किट में, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये हमारे पास, क्योंकि यहां अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बोथ आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में है, इसलिए हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करा सके। तो इस रिएक्शन की जो एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, which is to be converted into electrical energy, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं था इस रिएक्शन में, इसलिए वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी में। और बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यू हैव ऑलरेडी रेड इन 11, तो जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हुई वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट योर सॉल्यूशन ऑफ द बीकर गॉट हीटेड अप। So now we are going to discuss the second type of redox reaction, that is indirect redox reaction. So the second type of reactions are indirect redox reaction, that is electrochemical cell, that is electrochemical cell। हम वही रिएक्शन कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में जो रिएक्शन हमने अभी डिस्कस की थी, उसी रिएक्शन को हम दोबारा से करवाते हैं, बट नाउ इन ए डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से। कैसे करवाते हैं हम? मान लीजिए एक बीकर लिया हमने, इस बीकर के अंदर हमने डाला जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, we took zinc sulfate solution over here। हमने दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस। अब हमने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें हमने कॉपर की ही रॉड डाली, कॉपर रॉड, और जो हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने जिंक की रॉड डाली। We connected these two rods through a galvanometer and a key with each other। हमने इन दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया by means of a galvanometer, which I have already told you that it is a device to detect current, and a key which just like on off switch। इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने यहां पे एक डिवाइस यूज की विच इज कॉल्ड योर सॉल्ट ब्रिज। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्ट ब्रिज लेटर। दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया हमने बाय मींस ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज। अब हमने क्या किया, ये सारा अरेंजमेंट बनाने के बाद इस की में इस की को इंसर्ट कर दिया, एंड वी अलाउड सम टाइम टू दिस रिएक्शन टू अकर। हमने इस रिएक्शन को कुछ टाइम दिया होने के लिए, कुछ समय तक छोड़ दिया, मान लीजिए हमने की को डाल के इंसर्ट करके, और हमने अगेन वी ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। जितने समय के लिए हमने इनको दोनों को लगा के छोड़ा, उस पीरियड के दौरान हम ये देखते हैं क्या हो रहा है। हम क्या देखते हैं, अगेन अगर हमने ये दोनों रोड्स वे की हुई हैं और कुछ समय के बाद इनको बाहर निकाल के दोबारा से वेट करें, तो हम क्या देखेंगे, जिंक रोड जो है
it loses weight. Copper rod gains weight. अगर दोबारा से तोले तो, अगर हमने इनको तोल के लगाया है तब की बात कर रहा हूं, अदरवाइज यू कैन निग्लेक्ट दिस ऑब्जर्वेशन. अगर आप इसको तोल के नहीं लगा रहे तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, ए डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. आपको गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखाई देती है, विच इंडिकेट्स that some current is flowing through the external wire. Indicate flow of current. Third one, blue color of copper sulfate solution diminishes. ये फिर से diminishes हो रहा है, and no heating of any solution. और आपके दोनों में से किसी भी सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन गर्म नहीं हो रहा है. अब इस रिएक्शन में क्या है, हो क्या रहा है, इसके अंदर भी वही रिएक्शन हो रही है कि आपका जिंक सॉलिड कॉपरी ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपका कॉपर जो है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. सेम रिएक्शन इज गोइंग ऑन, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन डिस्कस्ड प्रीवियसली एंड दिस रिएक्शन? दिस इज द डिफरेंस इज द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट इज द जिंक, एंड द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. वो एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं है. They are although indirectly connected, but they are not directly connected. So this type of reaction is called indirect oxidation. अब ये रिएक्शन करवाने से हमारे पास क्या हुआ? We got the electrical energy as indicated by the deflection in galvanometer. Galvanometer में deflection ये indicate कर रही है कि some current is being produced, meaning thereby is electric energy is produced. So we have generated the electrical energy. So this device which is converting the chemical energy of this reaction into the electrical energy, इसको बोलते हैं हम electrochemical cell. But this is called electrochemical cell. So how we will define the electrochemical cell? So an electrochemical cell is defined as a device which converts chemical energy of a redox reaction into electrical energy. That is called your electrochemical cell. This is the definition of electrochemical cell. So if somebody asks you to define electrochemical cell, then how will you define? That it is a device which converts chemical energy of a redox reaction into a electrical energy. तो ये definition होगी electrochemical cell की. Now we are going to learn about some terms which will be used over here. हमारे इस पूरी डिवाइस में से अगर हम सिर्फ राइट हैंड साइड के बीकर, दैट इज द बीकर कंटेनिंग द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन विच जिंक रोड इज बीइंग डिप्ड, सिर्फ इतने पार्ट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं हाफ सेल. इट इज कॉल्ड ए हाफ सेल और एन इलेक्ट्रोड. तो एक हाफ सेल या इलेक्ट्रोड क्या है? वो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो पार्ट है, हाफ ऑफ द पार्ट इन विच आइदर द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस और द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, सो इट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल.
और अगर हम इसको इलेक्ट्रोड की टर्म में लिखेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एनोड। ये मान के चलना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारी केमिस्ट्री में जो कन्वेंशंस है उसमें जो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड कहलाता है। और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यहां पे साइन का डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। आई विल बी मेंशनिंग दैट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोड कहलाएगा। इसी तरीके से ये कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर रॉड डिप्ड है, हाफ पार्ट ऑफ दैट सेल, इट इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। इट इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। और अगर एनोड की तो कैथोड इसको कहेंगे, इलेक्ट्रोड की बात करें तो इट विल बी कॉल्ड कैथोड। तो इसको हम कहेंगे कैथोड और इस पे हमेशा हमारी रिडक्शन होगी। अब ये जो सेल है, ये रिएक्शन हो रही है सेल में, इसमें से इस बीकर में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक एक्वस आयन बन रहे हैं एंड इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और इधर क्या होगा, क्यूप्रिक आयन विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड एट कॉपर। इसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। एंड द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे कल बात करेंगे। सो गो थ्रू दिस एंड if you have any difficulty let me know in the comment box. I will address that difficulty. Thank you very much.